Okay, so this was our question number 2. You can see that this question is asking you to find the flux of this vector field. This is a vector field, right? It's a 3D field, so of course you will be dealing in 3 dimensions, right? So you need to find the flux out of the closed surface capital S. This is a surface, right? And this surface is formed by the union of paraboloid. The paraboloid is a having a shape of wine glass, as I told you earlier, right? So its equation is z equal to x square plus y square, okay? And the plane z equal to 1, right? So this is a picture, you can see that, and this blue colored bowl is actually a paraboloid, right? And the top of this paraboloid is bounded by some plane z equal to 1, right? So you can see that this color is for plane actually z equal to 1. Okay, so since the flux is required through this whole surface S, which is actually the union of two different surfaces, which is one of them is this blue colored surface, we are calling it S1, right? There's a surface of paraboloid, and another is this light uh, which clay color, it's a clay color actually, mitti का रंग होता है जैसे clay color surface, let us name it as S2, and this is your plane Z equal to 1. So we are going to do this problem actually in 2 phases. First we will compute the flux through the surface S1, and then we will compute the same for S2, right? Okay. Now see, uh, for the surface S1 of paraboloid, the first surface, the equation of the paraboloid is this one, right? See that the equation was given in this way, z equal to x square plus y square. But rather than taking x square plus y square on the left hand side, I took z on the right hand side, right? So the equation of phi 1 became x square plus y square minus z equal to 0, and it has some logic actually, right? Because whenever you are going to find the unit normal for this surface, we'll see the calculation first, then I will explain that why I have taken specifically a negative sign before this z actually, right? Okay, now see, compute gradient of phi 1, right? And as soon as you compute gradient of phi 1, you should compute the unit vector n1 cap, right? And this is a formula for unit normal vector, where you divide the gradient phi by its magnitude, right? Okay, so this is n1 cap, and note the sign of coefficient of k cap, that is negative. What does it mean? It means that if you drop a normal to this surface, this blue colored surface, can you see this normal, right? N1 cap. Now tell me, along this normal, as you move along this normal like this, this is n1 cap, z is increasing or decreasing? Show me. Decreasing. डिक्रीजिंग, क्योंकि z तो ऊपर है, ऊपर की तरफ जा रही है z एक्सिस, और आप नीचे उतर रहे हैं n1 पे जो आप चलेंगे तो, राइट? तो k कैप के आगे नेगेटिव साइन आना चाहिए या पॉजिटिव आना चाहिए? So negative. नेगेटिव आना चाहिए, तो इसीलिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड लिया, आपने z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिया। दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक होता है। ऐसे ही कोई भी साइन नहीं ले लिया जाता, ये सोच समझ के आपको लेना है, पिक्चर को देखना है कि ज्योमेट्री क्या कह रही है और फिर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? तो सीधा तुक्का भी नहीं लगाना है। तो ये क्लियर हो गया आपको? व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली रिटन द इक्वेशन ऑफ phi 1 is x square plus y square minus z equal to 0, right? Okay, now this is n1 cap. Now we are going to project this surface. Note that we are talking about blue colored surface. I'm not talking about this clay colored surface. We are talking about S1 actually, blue colored surface. Now take the projection of this S1 surface on any plane, but the projection should be complete. And the logic of taking the projection is that if you drop the perpendicular from the surface onto the projection, then that perpendicular should cut the surface at exactly 1 point. As I told you yesterday, that if you think of yourself that you are sitting on the projection plane, right, and then you fire a bullet in upward direction towards the surface, then the bullet should
make a single hole on the surface. Now, keeping this fact in your mind, please tell me where should the projection of this blue colored surface should be taken? On xy plane, as I have taken, you can see that I have taken the surface on xy plane. So if I sit here and if I not drop actually, if I allow myself to make a perpendicular in upward direction like this, how many holes this perpendicular will be making on the blue colored surface? कितने होल बनेंगे ये perpendicular? ये लीजिए, गुड आफ्टरनून। अब अरे विकट राज इतने लेट में आके गुड आफ्टरनून कह रहे, गुड आफ्टरनून ठीक है, समय से आया करो क्लास में। वन, so Lakshmikant told that only one hole will be there, right? It means that this projection is the correct projection, right? और लक्ष्मीकांत ने भी तो आंसर दे ही दिया। लक्ष्मीकांत, if I take the projection of this blue colored surface on xz plane, विकट राज या टाइम से आया करो 1 बजे। if I take the projection of this blue colored surface on xz plane, will that projection be correct projection, Lakshmi? No, sir. No, sir. Good. And can the projection be taken on this plane? What is that? YZ plane? No, sir. No, sir. Good. Right. So the only projection, correct projection, is that projection which has been shown here, and of course it will be a circle. And why it's a circle? Because see the top of the this paraboloid, there's a circle, so that's why the shadow will be a circle. Of course, if you're having a circle above your head, then its projection or its shadow on the xy plane will be, of course, the same circle, right? And the equation of the circle can be comfortably found by observing that this circle is actually nothing but it is the intersection of this clay colored surface and this blue colored surface. So why don't we solve them simultaneously, those two surfaces? And if you put z equal to 1 here, then you will be getting x square plus y square equal to 1. So it means that the circle is actually x square plus y square equal to 1, right? And that's why the projection, that is a gray colored circle, you can see the picture, right? That is also x square plus y square equal to 1, right? I hope that this is clear to you, right? Okay. Now, where is that? Since we are taking projection on xy plane, so d of s1 will be replaced by dx dy, since we are taking projection on xy plane, and divided by modulus of n dot k cap, right? And then you do n dot k cap, and then you get this. Fine. Now you're going to find the flux through that blue colored surface S1, and that is computed this way. This is a double integral, and vector f dot n1 cap, right, and ds1. Okay, fine. Now you just plug the value of f factor, you plug the value of n1 cap, and then you replace the ds1 by this thing, right? So this is just substitution. Okay, and then you see that this denominator always get cancelled. This is natural. This denominator will always be cancelled in each and every problem, right? And now you get this. But now what happens? You are actually on xy plane. n2 का n2 तो अभी हमने किया ही नहीं, n2 के लिए भी करेंगे, ये तो अभी पहले वाला चल रहा है, ब्लू कलर की बात चल रही है, जब क्ले कलर की बात चलेगी तब करेंगे n2 को डील, अभी तो आप ब्लू पे फोकस करिए। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज। ओके, राइट। नाउ n1 कैप, n1 कैप मैं बता चुका हूँ, n2 कैप के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम क्ले कलर्ड सरफेस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो इस पर फोकस करिए। आप देखिएगा कि आप आ चुके हैं XY प्लेन में, but unfortunately this integrand is involving this z variable. We don't want z because we are on xy plane. हमने प्रोजेक्शन ले चुके हैं, हम जमीन में उतर चुके हैं xy प्लेन में, राइट? z आपको नहीं चाहिए, z को हटा दीजिए। z को ऐसे नहीं हटाना कि z को 0 डाल दिया कि हम xy प्लेन में आ गए तो z 0 हो गया, नहीं भाई, z हटेगा तो सरफेस की इक्वेशन से, उस सरफेस की इक्वेशन से जिस सरफेस के बारे में बात चल रही है। अभी ब्लू कलर्ड सरफेस यानी कि पैराबोलाइड के बारे में बात चल रही है, और पैराबोलाइड की इक्वेशन ये थी, तो यहाँ से z निकाल के चुपके से यहाँ डाल दीजिए, जिससे कि सब कुछ xy में बदल जाए, राइट? अब ये प्रॉब्लम बन गई है एक डबल इंटीग्रल की एक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, जिसमें कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका प्रोजेक्शन है वो क्या था। प्रोजेक्शन दरअसल एक सर्कल था, मैंने भी बना दिया सर्कल, राइट? अक्सर इस तरीके के इंटीग्रेशन को एक्स वाई में ना करके आर थीटा में करना फायदेमंद होता है, अगर बात चली हो सर्कल की, क्योंकि सर्कल
की जो पोलर इक्वेशन है बड़ी मशहूर है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और dx dy रिप्लेस होता है r dr d थीटा से। ध्यान रखिएगा ये पैरामीटराइजेशन नहीं है, दिस इज नॉट पैरामीटराइजेशन, दिस इज एक्चुअली यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। पैरामीटराइजेशन कुछ और होता है, वो सिंगल इंटीग्रल में किया जाता है, जब जहां x को 2 cos t या 3 cos t और y को भी 2 cos t या 3 cos t रखा जाता है, वो डिपेंड करता है कि रेडियस कितनी है, लेकिन वहां r नहीं यूज होता है, राइट। सो दिस इज जस्ट आपने पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर लिए हैं। एंड द लिमिट्स ऑफ r, सिंस इट्स अ कंप्लीट सर्कल, ये आप देख सकते हैं पूरा सर्कल है, एंड लिमिट्स ऑफ r विल बी 0 to 1 बिकॉज इसकी रेडियस 1 है। थीटा की लिमिट्स होंगी 0 से 2 पाई, तो लिमिट्स आपको मालूम होनी चाहिए। देन यू प्लग दीज वैल्यूज एंड देन यू इवैल्यूएटेड दिस इंटीग्रल, and the answer is minus 5 pi by 2, right? But this calculation is done for surface number 1, S1. We are going to do the same calculation for our second surface, that is the clay colored surface. Now we'll move to that surface. See this picture once again. Now we are going to find the flux through this clay colored surface. Okay, now who will join me? Mr. Gaurav will join me. Gaurav, if you are here, then please join. Yes, sir, yes. And okay, fine. Now please tell me the unit vector which is normal to the surface. वैसे तो तस्वीर से ही दिख रहा है, इसके अगर आप नॉर्मल डालेंगे तो ये सीधा पैरेलल होगा जेड एक्सिस के, ये आपको दिख रहा है, Yes, sir. जेड एक्सिस के पैरेलल ही होना है, क्योंकि बिल्कुल हाँ, तो सीधा भी कोई बच्चा के कैप लिख सकता है, सीधा भी लिख सकता है, लेकिन जो बच्चा दिमाग नहीं लगा रहा है, उसको कैलकुलेशन ही करनी है, तो लीजिए फिर एन टू कैप में निकाल देता हूँ, वो भी यही आएगा। प्लेन की φ2 की इक्वेशन है z माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्चुअली में इक्वेशन थी z इक्वल टू 1, मैंने 1 को लेफ्ट में लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मत करिएगा, कोई बच्चा 1 माइनस जेड इक्वल टू 0 भी कर सकता है, बट दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई दैट विल बी रॉन्ग? क्योंकि इसके आगे z के आगे कैसे साइन लगा है? नेगेटिव, सर वो अंदर चला जाएगा yes or सर। no? यस सर। हाँ, ये नेगेटिव। अगर आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो अगर जो बच्चा 1 माइनस जेड लेगा तो फिर ये वाला वेक्टर आ जाएगा एन कैप, यानी कि आप फ्लक्स बाहर निकलने वाला फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, आप अंदर जाने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा इन्होंने कि वो वाला फ्लक्स निकालो जो आउट माने बाहर निकल रहा हो, अंदर जाने वाला फ्लक्स नहीं निकालना आपको, तो इसीलिए आपको जेड के आगे प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि जेड प्लस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, राइट। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़े काम के कंसेप्ट हैं, ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। चलिए, ये लिया आपने φ2 और फिर आपने निकाला ग्रेडियंट ऑफ φ2, ग्रेडियंट φ2 निकालेंगे फॉर्मूला लगा के तो k कैप आ जाएगा, जैसे निकालते हैं ग्रेडियंट, राइट। और फिर आप n2 कैप निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है, जो आप पुट करेंगे तो नीचे इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, आंसर विल बी k कैप। तो ये तो कैलकुलेशन है, लेकिन ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे फ्रॉम पिक्चर। पिक्चर से साफ दिख रहा है कि जो यूनिट नॉर्मल होगा दैट विल बी पैरेलल टू z एक्सिस, इट मींस दैट शुड बी k कैप। बट अगर आपको कैलकुलेशन ही करनी है तो फिर लीजिए ऐसे भी k कैप ही आ रहा है, ठीक है। नाउ Gaurav, will you please tell me the projection of this clay colored surface onto xy plane? इसका प्रोजेक्शन क्या सेम ही आएगा? आएगा, सेम ही। सेम ही आएगा, और ये बात यहाँ पे हाईलाइट करके लिखी हुई भी है, बिल्कुल से लिखी हुई है, प्रोजेक्शन r as well as r2 both are same and both are circle actually, x square plus y square equal to 1, सेम ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि प्रोजेक्शन सेम आया, सर्कल ही आया, तो मैं सर्कल की पिक्चर दोबारा बनाने नहीं वाला, चिंता मत करिए। चलिए, मैं सीधा ये निकाल लेता हूँ ds2, क्योंकि प्रोजेक्शन आप फिर से xy प्लेन में लेने जा रहे हैं, तो अगेन ds2 विल बी रिप्लेस्ड बाय dx dy अपॉन मॉडुलस ऑफ n डॉट k, एंड दैट विल बी dx dy, right? And now see, now I'm going to calculate the flux through surface S2, and this is the formula, right? And then you put the value of f, this is the value of n2 cap, this is the value of ds2, right? And when you do the dot product, you will be getting 5 times of z. But note that you have taken the projection on xy plane, and you want the limits of x and y, you want everything in terms of x and y, you don't want z. So you have to remove that z, but this time you are going to remove that z using the equation of the surface which you are talking about. अब आप इस वक्त आप किस सरफेस की बात कर रहे हैं? अब आप पैराबोलाइड सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप क्ले कलर जिसमें हुआ है, प्लेन जो है आपका, आप उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो उसी से z निकालिएगा, z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 हम प्लग करेंगे तो हमें मिलेगा 5 टाइम्स dx dy, ऑफ कोर्स 5 आप बाहर ले सकते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एरिया, ये मैं आपको बता चुका हूं। whenever the integrand, this here is the integrand actually, whenever the integrand is 1, you can see that the integrand is 1, so it represents the area of that region R2, right? So area of region R2, and since R2 is a circle, so everybody knows the area of a circle, pi r square, right? So pi into r square, radius उसका 1 है, so 5 pi is the
flux through the surface S2. So since the picture is the union of two surfaces, one is a paraboloid S1 and another is the plane Z equal to 1 S2, right? So now we are going to add those two flux together, and on adding them we got the answer 5 pi upon 2, right? In fact, if there are more than two surfaces, then we have to compute flux through each and every surface, and then finally we have to add them. This is the way how we compute net flux. Are you getting my point? Any doubt in this question? No, sir. Okay, fine. ठीक है. तो अब हम क्लियर सर, गुड. नाउ तो अब हम काबिल हो गए हैं कि हम आगे बढ़ जाएं एक कदम और. अगेन दैट 5z, ओके, नो प्रॉब्लम. 5z के बाद कृष्णनारी z आपको चाहिए ही नहीं अपनी कैलकुलेशन में, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप तो x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं. z को आपने हटाना होगा. हटाने का मतलब ये नहीं कि मिटा दिया. हाँ, हटाने का मतलब ये नहीं कि मिटा दिया, ये z को 0 डाल दिया. ये कोई तरीका नहीं है कि z को 0 डाल दिया. z को वो डालना पड़ेगा जिस 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 सरफेस के बारे में आप बात कर रहे हैं. अभी हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्ले कलर वाले सरफेस की, यानी कि प्लेन की. z इक्वल टू 1 की बात चल रही है, राइट? तो z की जगह 1 डालना पड़ेगा. जो भी सरफेस की इक्वेशन रहेगी वही z को डालना है, तो वो डाल दिया. This becomes 5 times dx dy. 5 can be taken outside the integral, and now this thing represents the area of region R2. And to verify this, you see your last file where you can see the last remark page, the remark on last page actually. वहाँ पे लिखे हैं हमने फॉर्मूले एरिया और वॉल्यूम के, तो वो लिखा हुआ है वहाँ पे फॉर्मूला, राइट? तो एरिया, और अगर आपको नहीं भी आता है फॉर्मूला कोई बात नहीं, तो आप इंटीग्रेट कर ही लीजिए, फिर क्या दिक्कत है. कृष्ण भंडारी, मान लीजिए आप भूल गए कि ये एरिया होता है, मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना है, फिर से आप इसको चेंज कर लीजिए आर थीटा में. दैट विल बी 5 टाइम्स थीटा की लिमिट्स होंगी 0 to 2 pi बिकॉज इट्स अ फुल सर्कल. r की लिमिट्स विल बी 0 to 1 and dx dy will be replaced by r dr d theta, and then you evaluate this thing, you will get same answer. Sorry, this one, not this one. You will get this answer 5 pi, right? ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली एरिया लिख दें, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं. या ओके, चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट, इवैल्यूएट फ्लक्स, right? For f, the field is through the surface S, right? Which is y square equal to 5x, defined for x lying between 0 and 3 and z lying between 0 and 4. This is the question. Now please see that. What is this? क्या होता है ये? दीवार होगा सर. हाँ, ये दीवार होगी. वैसे 2 डायमेंशंस में तो ये पैराबोला होता है, यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. This is a parabola, right? So first I will y square equal to 5x. y शिवम वर्मा कह रहे y से दीवार क्यों होगी, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ. हाँ, वैसे ये पैराबोला होता है, तो एक पैराबोलिक टाइप की दीवार होगी. इसका शेप मैं कुछ बना दूं आपके लिए कि अगर आपको लगे कि ये है क्या, जो ये चीज है, राइट, ये कुछ ऐसे होगी. सी, कोशिश करते हैं बनाने की. पैराबोला तो आप जानते ही हैं. y स्क्वायर इक्वल टू 5x. मान लीजिए, फर्ज करिए ये वाली जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, नो प्रॉब्लम शिवम वर्मा, this axis is y axis, right? And suppose this is your x axis, right? So you are actually watching from this side angle, so that, but this is actually 90-degree angle, right? You are watching this coordinate plane from far, right? Okay, now can you see that this y square equal to 5x will be a parabola like this. दिस इज पैराबोला. ओके, नाउ इसी के ऊपर इसी के जैसे पैराबोला रखते जाइए, इसी के ऊपर पैराबोला रखते चले जाइए, क्योंकि z है एक्चुअली, आप 3D में, सी दैट यू आर नॉट इन 2D, यू आर इन 3D, राइट? सो यू आर गोइंग टू प्लेस
the same copy of parabola one over another, right? So the final parabola, जो इसके ऊपर एक और parabola मैं रख देता हूँ तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा कुछ, और फिर ये आप इनको ज्वाइन कर देंगे कुछ इस अंदाज में, राइट? और ये कुछ ऐसा होगा, तो कुछ इस तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी। पिक्चर जैसे आप एक स्केल को ले लीजिए, फ्लेक्सिबल सा स्केल, रेक्टेंगल होता है वो, और उसको बेंड कर दीजिए। टेक अ फ्लेक्सिबल स्केल लाइक दिस, rectangular scale, plastic scale, right? And that should be flexible, and bend it like this. You just pull its ends and try to U-shaped magnet. Yes, this is a, but that is 3D thing ना. Magnet is a 3D object. उसका 2D version लगा लीजिए, 2D version उसका, right? तो इन दोनों एंड्स को करीब लाने की कोशिश करिए, आसपास इसको उधर लाइए, इसको उधर लाइए, दिस पिक्चर विल बी फॉर्म्ड। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और चिमा वर्मा ने क्वेश्चन पूछा था कि वाई 3D, ये पूछा था इन्होंने, क्योंकि बिकॉज यू आर इन 3D ना। जैसे कि सर्कल बिकम्स, जब सर्कल होता है उसमें 2D में, वो 3D में सिलेंडर बन जाता है, क्योंकि सर्कल के ऊपर सर्कल रखना होता है, तो सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे ही 3D में पैराबोला के ऊपर पैराबोला के ऊपर पैराबोला के ऊपर पैराबोला, फिर एक दीवार सी बनती चली जाएगी, तो वो कुछ ऐसी बनेगी जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, राइट? लेकिन एक्चुअल पिक्चर मैं बना रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा था, राइट? तो इसको एक्चुअल स्केल में मैं अब बनाने वाला हूँ, जहाँ पे x, y और z तीनों ही एक्सिस रहेंगे, ठीक है? ये इस पिक्चर की आपको जरूरत अब नहीं है, मुझे लगता है, विल इसको हटा देंगे। पहली एक्सिस हो गई आपकी z एक्सिस, y, x एक्सिस, राइट? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे बना रहा हूँ तस्वीर। इसका इस्तेमाल करते हैं, इस कलर का, इसी का इस्तेमाल करते हैं, चलिए ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर x एक्सिस, x, दिस इज y, दिस इज z। तो क्योंकि जो पैराबोला की एक्सिस है वो x एक्सिस है, कुछ इस अंदाज में बनेगा, नॉट लाइक दिस, कुछ ऐसा। Fine, and now I have to join them using a straight line actually, सीधी लाइन बननी चाहिए। Can you see this? And ये एक्चुअली में जैसे दरवाजा होता है, जैसे ये आपकी हिंज है, दीवार है, यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है, राइट? और ये खुला हुआ दरवाजा है, इट्स अ काइंड ऑफ ओपन डोर, partially open, not completely open, partially open, but the door is actually a rectangle, but this is not a rectangle, it's a kind of tilted surface, curved surface, right? So I will give it a 3D look also. Now it will appear like a 3D picture, yes or no? And I will get this too. Okay, so we are talking about this particular surface. I will just color it, this surface. डायग्राम अभी समझ में, बड़ी शुक्र प्रति इंतजार करो, अभी आएगा समझ में, चिंता मत करो। दरवाजा होता है ना, जैसे आधा खुला हुआ कमरे का दरवाजा होता है, उसका आधा खोल दो ना, लेकिन दरवाजा तो रेक्टेंगल होता है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, ये थोड़ा कर्व्ड सरफेस है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। आप इसकी ऊपर वाली एज देखिएगा, थोड़ा कर्व्ड है, सीधी लाइन नहीं है वो। तो दिस ब्लू कलर्ड पिक्चर इज अवर सरफेस एक्चुअली, जिसमें कलर हो रखा है वही आपका पिक्चर है, और कुछ नहीं है। और तो मैंने आपको सिर्फ 3D विजुअलाइजेशन हो इसलिए मैंने वो लाइंस बनाई हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, कैन यू सी दैट दिस इज अ कर्व्ड पोर्शन? ये जो ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला कर्व है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो इट विल अपीयर लाइक अ डोर, नो, बट दिस इज नॉट अ डोर, दिस इज अ काइंड ऑफ डोर, बट इट्स कर्व्ड एक्चुअली लाइक दिस, थोड़ा सा घुमा हुआ है ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट? तो ये है आपका सरफेस। नाउ प्लीज टेल मी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट नॉर्मल। हालांकि दो डायरेक्शन लिए जा सकते हैं यूनिट नॉर्मल के, एक आपकी तरफ भी हो सकता है टुवर्ड्स द रीडर और अवे फ्रॉम द रीडर। आप मुझे जो कहेंगे मैं उस तरफ बना दूंगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। कौन सा नॉर्मल लेना पसंद करेंगे आप, अपनी तरफ आता हुआ या दूर तरफ? एक नॉर्मल तो ये होगा दूसरी तरफ जाता हुआ, और एक ये होगा आपकी तरफ आता हुआ। कैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करवा देंगे आपको। प्लीज टेल मी।
मुझे लगता है कि अगर आप अपनी तरफ आता हुआ लेंगे तो फिर प्रोजेक्शन आपको इधर लेना पड़ेगा, एक्स इनसाइड लेना। चलिए मैंने बना दिया, दिस इज एन कैप, फाइन। सो आई विल राइट हियर एन कैप, ओके फाइन, ठीक है। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लगता है एन कैप इधर नहीं लेना चाहिए हमें, एक्चुअली में एन कैप उधर लेना चाहिए। आप देखिए ना, ये किसकी लिमिट्स है, एक्स और जेड की, ये दिया है ना, तो ये एक्स और जेड माने ये वाला प्लेन हुआ, ये वाला प्लेन, तो प्लेन का प्रोजेक्शन आपको इधर लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एन कैप उधर ले लेना चाहिए आपको, ज्यादा समझदारी होगी, आउटवर्ड हो जाएगा फिर वो, क्यों। तो इधर लेने की बजाय आप इसका प्रोजेक्शन, सॉरी यूनिट नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में ले लीजिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन इधर लेना पड़ेगा नीचे। सो दिस इज एन कैप एक्चुअली, एन कैप, एन कैप, राइट। एंड सी दिस सरफेस इज डिफाइंड, मतलब ये जो सरफेस है ये डिफाइंड है सिर्फ इतने हिस्से के लिए। कहाँ से कहाँ तक, जब जीरो, एक्स की वैल्यू 0 से 3 तक थी, मान लीजिए 3 है, हाँ ऑफ कोर्स 3 होगा, राइट, और जेड की वैल्यू 0 से 4 तक थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल सा बना देता हूँ, और जिसको मुझे कलर भी करना पड़ेगा बाद में, राइट। सो दिस इज द प्रोजेक्शन एंड आई विल शेड इट विद द ग्रे कलर। ऑफ कोर्स इसका प्रोजेक्शन भी आएगा और सही आएगा, गुड। लेकिन वहां इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां हमें लिमिट नहीं पता चल पाएंगे, हमें हमें ये नहीं पता चल, जेड तो वाई नहीं पता हमें एक्चुअली, वहां पर वाई ना पता होने के कारण मुझे मजबूरी में इधर प्रोजेक्शन लेना पड़ रहा है, राइट। क्योंकि वाई जेड प्लेन में वाई और जेड दोनों चाहिए होंगे, जेड तो आपको पता है लेकिन वाई नहीं पता, आपको एक्स पता था, इसीलिए, राइट। ओके फाइन, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, या हम शुरू करेंगे, हम करेंगे अपने सरफेस से। चलिए, सरफेस S is phi is equal to, please tell me what to do, क्या 5x को इधर लाऊं या y स्क्वायर को उधर ले जाऊं। आपको क्या लग रहा है, ये यूनिट नॉर्मल जब बढ़ेगा इसको और आगे एक्सटेंड करते चले जाएंगे इस डायरेक्शन में, या गौरव कुमार प्लीज टेल मी। सर मतलब जो ये y वाला है सर, क्या कहते हैं, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 5x, सर ये उस तरफ हाँ अपनी हमें तरफ, इस तरफ, y एक्सिस भी है। हाँ हाँ ले सकते थे, लेकिन फिर ऐसा करते ना, फिर आउटवर्ड वो नहीं, असल में क्या होता है कि जिस उस तरफ मत लो, उस तरफ मत लो यूनिट वेक्टर को, नॉर्मल को, जिस तरफ प्रोजेक्शन डाल रहे हो, प्रोजेक्शन भी आप नहीं इधर सर, ही डाल मेरा देना। वो सवाल नहीं है सर। हम्म सर y स्क्वायर इक्वल टू 5x को सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में लिया है सर, दूसरे क्वाड्रेंट में भी तो आएगा सर। दूसरे में तो ये देखो ना फिर, 0 से x, x जो है वो 0 से 3 और z 0 से 4, अच्छा ओ ये बात तुमने वही सही कही। हाँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पॉजिटिव ऑक्टेन, इन पॉजिटिव ऑक्टेन, इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। अब ठीक है, अब तो ठीक है, पहले हिस्से में खाली, ठीक है। अब ये बता दो कि हाँ, अब ये बता दो कि वाई स्क्वायर माइनस 5x लिखूं या 5x माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इस नॉर्मल पे चलें ऐसे करके तो x डिक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है, x या डिक्रीज हो रहा है, तो -5x आएगा, राइट, ठीक है। देन ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर आप निकालेंगे, दैट विल बी i del by del x फाई प्लस j del by del y फाई प्लस k del by del z फाई, so that gives you कितना आएगा, -5i cap plus 2y j cap, right, implies n cap will be equal to gradient phi upon determinant mod of gradient phi, and that gives you -5i cap plus 2y j cap divided by square root of 25 plus 4 y square, right. And do not worry about this complicated denominator, this will be eventually cancelled, ये cancel होना ही है, चिंता मत करिए, घबराइएगा मत इसको देख के, ठीक है। नाउ अब आते हैं दूसरे पड़ाव में, हमें प्रोजेक्शन लेना है, हम ले भी चुके हैं, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन,
वो दिख रहा होगा आपको, विच इज एक्चुअली ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, राइट। 3 यूनिट्स इसकी लेंथ है और विड्थ जो है इसकी वो 4 यूनिट्स है, राइट। उनका नाम भी दे देते हैं हम। इसका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी कैपिटल ए और दैट विल बी 300, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो 3 यूनिट्स है एक्स, एंड दिस इज दिस वन, दिस पॉइंट इज, अगर इसका नाम सी दे दें तो दिस इज 0, 0, 4, क्योंकि यहाँ दिख रहा है z 4 तक जा रहा है, राइट। सो दिस पॉइंट विल बी, दिस पॉइंट इज b, this point will be x, x is 3, y is absent here, and z is 4 here, right. And you all know about this point, this is origin, o is origin, right. So I am not writing the coordinate of origin, I will just write the letter o here. Okay, fine. Now the plane position on xz plane, and the projection is named as r, right. Okay, so I have to draw that rectangle once again here. This is your x-axis, or sorry, y-axis, right. Okay, fine. This is x, this is y, and x is varying from 0 to 3, and this is 4. Okay, fine. So it will be something like this. Z कहाँ से कहाँ तक है? 4 तक है. Z नहीं, sorry, oh Z, sorry, this is not y, this is Z. Z axis होनी चाहिए. This kind of rectangle, right? We'll draw a straight line here. Okay, fine. Now this is O, A, B, C. The coordinate of A will be 3, 0. Coordinate of B will be 3, 4, and C was 0, 4, right? So this is 0, 4, 0, 4. This is coordinate C. Now you're talking about this rectangle. Now who will tell me the limits of x and z from this rectangle, right? हालांकि उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, लेकिन फिर भी पहले लिमिट निकाल लेते हैं. स्ट्रिप बनानी पड़ेगी. कैसे स्ट्रिप अलाउ करेंगे आप इसमें? रेक्टेंगल, वर्टिकल, ये दोनों, या x इज फ्रॉम 0 3, वो ठीक, हाँ दोनों बन सकती है. द लिमिट्स ऑफ z इज 0 to 4, and along this direction there will be a motion from x equal to 0 to 3, right? And now I will find the flux. Therefore, and of course, since you are taking projection on xz plane, so ds will be replaced by dx dz, because you are taking projection on xz plane and away from the origin. Yes, Shikarupariti, you are absolutely right. And it should be divided by modulus of n dot j cap, right? And dx dz upon n dot j cap, this is n, and इसका डॉट करेंगे जब आप j cap के साथ, you will be getting 2y upon square root of 25 plus 4y square. तो अच्छा हुआ कि ये पॉजिटिव आ रहा है, मुझे मॉडुलस की जरूरत कुछ खास पड़ेगी नहीं है, राइट. Therefore, I'm going to find the flux, right, is equal to flux through S, through the blue colored surface S, is equal to double integration S F dot n cap ds. Now it is just about to substituting the values of these vectors. So F is given in question. This is F 3y, so I will do a dot with the n actually. So if I do dot, then 3y into minus 5, that gives you minus 15y plus 4yz, right? So minus 15y plus 4yz. So this is a, when you do the dot product of these two things, you are getting this, okay? And divided by, sorry, divided by square root of 25 plus y, 4y square, right? And then plug the value of ds. So this is the value of ds, that gives you dx dz divided by 2y upon the square root of 25 plus 4y square. And as I promised you that this complicated term always gets cancelled, so do not worry, okay? And since you changed everything in dx dz, so there is no point to write s here. You should write capital R here,
this is your capital R, and the limits will be of x and z. Of course, it means that you don't need any y here, so you should get rid of this y, but luckily this time this y is getting cancelled with these two y's, right? Okay, so finally I will be getting 1 by 2 will appear outside. This will be minus 15 plus 4z. So everything is in x and z, right? And now you're going to use the limits of dx and dz, and that will be done in we should do this in the same step actually. So these are the limits of x is from 0 to 3, and z is from 0 to 4. Note that all the limits are constant, right? So I have written the limits of x as the innermost limits because all the limits are constant. Okay, fine. Now that is 1 upon 2. So if you integrate this with respect to x, that will be minus 45 plus 12z. Sorry, not z. Yeah, 12z, fine. And then dz, and the limits of z 0 to 4. And then you integrate this, and you will get minus 42. Yeah, that will be the answer. Is it fine to all of you? Okay. प्रोजेक्शन कैन बी टेकन एट ZY प्लेन. और ZY प्लेन पे प्रोजेक्शन इसलिए लिया है कि ZY प्लेन पे ही प्रोजेक्शन. अच्छा, क्यों नहीं लिया ZY प्लेन पे? ZY प्लेन पे प्रोजेक्शन लेते तो रेक्टेंगल किधर आता? ZY प्लेन में आता. फिर आप स्ट्रिप ऐसे बनाते, फिर आपको y और z की लिमिट चाहिए होती. ये प्रॉब्लम. जिस प्लेन पे आप प्रोजेक्शन लेंगे तो उसी की तो लिमिट्स निकालेंगे. YZ प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे तो y और z की लिमिट चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि y की लिमिट तो है ही नहीं ना आपके पास, तो x और z की लिमिट थी. क्वेश्चन में मजबूर कर रखा है आपको. इस क्वेश्चन में आप दो जगह प्रोजेक्शन ले सकते हो, चाहे तो इस वाले प्लेन में जहां मैंने लिया, और जहां आप कह रहे हैं अभी आपने पूछा वहां भी ले सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि लिमिट भी तो पता होनी चाहिए ना. लिमिट पता है इसकी XZ प्लेन की, तो फिर उधर ही ले लो, जिधर लिमिट है उधर ही जाओगे ना, फिर आप तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे. गौरव कुमार कहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन्होंने भी सवाल पूछा था क्या वो संतुष्ट है मेरे जवाब से? सोनू सिंह ने पूछा था क्या सवाल? चलिए, जिसने भी पूछा तो आंसर मिल गया आपको. प्रोजेक्शन उसमें ले सकते थे YZ प्लेन में, लेकिन लिमिट नहीं पता ना. प्रॉब्लम ये है, लिमिट आप कैसे निकालोगे? इशू ये है, राइट? हाँ, लिमिट निकालने का तरीका था नहीं. वैसे एक चीज है मेरे पास, हाँ निकाल सकते थे, लिमिट निकाल सकते थे. पता क्या करते? फिर क्या करते? फिर x इक्वल टू 3 रख देते इसमें, यहाँ पे x इक्वल टू 3, तो मिलता आपको y स्क्वायर इक्वल टू 15. तो y की लिमिट आती स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो y की लिमिट ऐसे आती. फिर ठीक है, कर सकते थे, उधर भी आप कर सकते हो. और उस केस में फिर आंसर आएगा प्लस का 42, क्योंकि आपका फिर जो नॉर्मल होगा वो इस तरफ होगा. इधर को नॉर्मल लेंगे आप मेरी तरफ, टुवर्ड्स द रीडर. आंसर प्लस 42 आएगा. यस गौरव कुमार, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. सर वही पूछने वाले थे सर, y को x को 3 रख के. हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, कर सकते थे वैसे. ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ने के लिए आप तैयार हैं? सर हाँ जी, पूछिए. प्रोजेक्शन और नॉर्मल दोनों एक ही तरफ नहीं ले सकते हैं? आउटवर्ड होता है ना, फ्लक्स हमेशा आउटवर्ड माना जाता है. तो जिधर आप परछाई, मतलब कहने का मतलब ये, जिधर आप परछाई डाल रहे हैं तो उधर आप खड़े होंगे, ये माना जाता है. जैसे आपके ऊपर छत है, तो छत की परछाई कहाँ लेंगे? आसमान में लेंगे, अपने फर्श में लेंगे? नीचे फर्श में लेंगे, लेकिन फर्श पे आप बैठे हुए भी हैं, तो परछाई उधर ली जाती है जिधर आप बैठते हैं, जिधर आपको बैठना होता है, राइट? तो फिर उस तरफ नॉर्मल नहीं, नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड लेते हैं. ठीक है, आउटवर्ड माने शेडो से उल्टा. अगर आपकी छत है तो छत का नॉर्मल ऊपर आसमान की तरफ जाएगा, ठीक है, और प्रोजेक्शन नीचे फर्श की तरफ आएगा. और अगर आपको उल्टा करना है तो फिर प्रोजेक्शन अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो फिर नॉर्मल अंदर की तरफ डालना पड़ेगा. ये सब कुछ मतलब बेसिक चीजें हैं जो सोचनी चाहिए. हालांकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गलत तो नहीं माना जाएगा, वो मेरे हिसाब से गलत नहीं है, पर एक कन्वेंशन होते हैं कुछ चीजें की, ऐसे ही लिया जाता है. प्रोजेक्शन हमेशा उल्टी दिशा में लिया जाता है, जहां यूनिट नॉर्मल जहां नहीं जा रहा है उस तरफ लिया जाता है ना? ओके. और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल किसी का? ऐसे सवाल अच्छे सवाल होते हैं, पूछा करिए. सवाल पूछने में कोई शर्म नहीं होती. सवाल वही पूछता है जिसको समझ में आता है. जिसको समझ में ही नहीं आता, जैसे हदीद है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हदीद शेख, चलो अब जुड़े रहो हमारे साथ, और ये बताओ, समझाओ इसको. ये फ्लक्स निकालना है कि, और सरफेस बताओ क्या है, ये पढ़ो इसको जरा. इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है? सरफेस कैसे बनेगा? सरफेस बताओ.
इसका सरफेस सर ये होगा, हाँ ये होगा, तो ये तो होगा जो लिखा हुआ है, लेकिन बोलना है ना कि ये क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कितना रेडियस है स्फीयर का हदीद? क्या सर? इसका रेडियस कितना है स्फीयर का? ए ये, और स्फीयर को 3D लुक भी देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो सर्कल लग रहा है फिलहाल। यस और नो? अब लग रहा है ये स्फीयर सर थोड़ा हदीद बहुत। शेख? थोड़ा बहुत? अरे इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं और तुम मुझसे थोड़ा बहुत कह रहे हो। ये पूरा स्फीयर लगेगा, अभी लग जाएगा। अगर मैं इसमें एक इसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ना ये बना दूंगा तब लग जाता है ये। क्यों, अब तो लग रहा है? हाँ, अर्थ लाइक। या नाउ ये तो बॉल है आपके पास, और उसको आपने काटना है एक चाकू से। चाकू भी होना चाहिए इसकी तरह, एक्स वाई इक्वल टू एक्स टाइप का चाकू, ऑब्लिकली काटना है आपको। तो मैं वो चाकू लेके आ रहा हूँ आपके पास। चाकू तो नहीं है वो, लेकिन कुछ ऐसा है। 45 डिग्री की लाइन लग रही है आपको ये? यस सर। और इसके पैरेलल लाइन में बना देता हूँ। इसी का कॉपी करूंगा मैं, क्लोन बनाएंगे इसका ऐसे करके। दिस इज प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड एक लाइन और बना देते हैं इसके अंदर। मुझे लगा एक लाइन और बना देनी चाहिए। नाउ आई विल बी जस्ट, दिस इज अ नाइफ। हाँ ये चाकू है, चाकू की तरह ही है, राइट? प्लेन। इमेजिन करिए जब आप एक स्फेरिकल बॉल को एक चाकू से काटेंगे, चाकू भी बिल्कुल डायगनली जाना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल में जाना चाहिए चाकू। तो जो बन के आएगी जो तस्वीर, जो सरफेस बन के आएगा, जो एप्पल का जो व्हाइट पोर्शन होता है फिर कटने के बाद, वो कैसा होगा? सर्कल होगा। सर्कल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्कल ही होगा। लेकिन अतीत एक बात बताऊं, वो सर्कल तो तुमने सही कहा सर्कल होगा, लेकिन वो सर्कल पता है कब लगेगा? जो आप उसको ठीक सामने से देखोगे। अगर आप उसको सामने से देखोगे तब तो वो सर्कल लगेगा, लेकिन अगर साइड से देखोगे तो वो कैसा लगेगा? साइड से आगे सर मतलब मतलब जहां जहां से तुम इस प्लेन को देख रहे हो दूर से एलिप्स लगेगा। लक्ष्मीकांत बहुत इमेजिन कर लेते हैं चीजों को, 3D पिक्चर को। सर्कल को सामने से देखो तो सर्कल लगता है, लेकिन साइड से देखो तो एलिप्स लगता है। यस और नो? This is a plane which is cutting that sphere, right? So I will just write this. This is plane y equal to x, right? ये तो स्फीयर तो आपको दिख रहा है। ये जो काट के जो बनेगा, अब जो पिक्चर जो बन के आएगी, अब मैं अब बनाऊंगा मैं वो क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो कटने के बाद जो आया, अब मैं वो बनाने वाला हूँ। मैं पूरा पिक्चर नहीं बनाऊंगा, ये काटेंगे तो ये नीचे का पोर्शन तो ड्रॉप आउट हो जाएगा, राइट? तो अब फाइनल पिक्चर में बनाने वाला हूँ, प्लीज पे अटेंशन। ये जो आपके y इक्वल टू x था, तो अगर अब मैं इसको, अगर मैं z एक्सिस आपकी तरफ ले लूँ लाइक दिस, z एक्सिस आपकी तरफ है, हाँ, तो ये वाली हो जाएगी x एक्सिस and this will be y axis. Now it's fine, perfect. एक्सिस मैंने बदल दिए हैं, z एक्सिस मैंने आपकी तरफ कर दी है, और अगर मैं z एक्सिस को आपकी तरफ करूंगा तो x और y इधर हो जाएगी और y ऊपर चली जाएगी। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो वो लेफ्ट हैंड थंब रूल याद करे। लेफ्ट हैंड थंब रूल जो आप करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते थे, याद है किसी को? लेफ्ट हैंड थंब रूल कुछ होता था। अपने हाथ की फिंगर्स को कुछ इस तरीके से कर्ल करिएगा कि जो आपका थंब है वो ऊपर की तरफ जाए, जो आप फ्रंट पहली फिंगर है वो सामने की तरफ, और मिडिल फिंगर, वो तीनों 90 डिग्री के एंगल में आपने, यानी अपने हाथ को कुछ ऐसे बनाइए जैसे गन होती है बच्चों को डराने के लिए, तो गन की तरह बना दीजिए। यानी तीनों फिंगर्स को, फर्स्ट जो 2 फिंगर्स हैं और आप साथ में थंब है, 90 डिग्री के एंगल में होने चाहिए तीनों के तीनों आपस में, राइट? तो जो थंब की डायरेक्शन होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ योर फर्स्ट फिंगर is the direction of what? The direction of y-axis. The direction of your middle finger that is coming towards you, that is x-axis. ये होता है। तो अब अगर आप उस अपने हाथ को उसी अंदाज में रोटेट करते चले जाएं, such that कि अंगूठा आपकी तरफ आ जाए, तो देखिएगा कि x-axis ये हो जाएगी, y ये हो जाएगी। ठीक है? Now I will draw the final picture when this plane cuts this sphere actually. चलिए कोशिश तो मैंने करी है, देखते हैं कि पिक्चर 3D लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो मैं कह नहीं सकता, कोशिश मैं कर रहा हूँ बस। जब आपने एप्पल को काटा बिल्कुल डायगनली, जैसे मैंने हदीद से बात करी थी, बिल्कुल बीचों बीच काटना है एप्पल को, और डायगनली काटना है चाकू। ग्रे कलर्ड सरफेस एक्चुअली दिस वन। हाँ जी बिल्कुल बाउल की तरह।
और बाउल हमें 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 पूरे ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एस वो है जो ये सरफेस है जो मैं ग्रे कलर कर रहा हूँ, बस इसी की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इसी सरफेस के बारे में सोचिए। कोई बता दीजिए इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लिया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, प्रोजेक्शन इसका नीचे एक्स वाई प्लेन में। इलिप्स बनेगा, बिल्कुल सही बताया गौरव कुमार ने, इलिप्स बनेगा। वो भी मुझे ड्रॉ कर लेना चाहिए, वो इलिप्स होगा, देखिएगा। इज इट फाइन? यस, काफी हद तक ठीक है। इसको हम कलर कर देंगे। अब ये ग्रे कलर का जो जो बन रहा है ना, ग्रे कलर का सर्कल है, जो हदीद ने बोला था कि ग्रे कलर का जो काटेंगे, एप्पल को काटेंगे डायगोनल से तो सर्कल बनेगा, सही कहा था उन्होंने। लेकिन सर्कल वो तब दिखेगा जब उसको सामने से देखेंगे, मतलब एप्पल को घुमा के व्हाइट वाला पोर्शन अपनी आंखों के सामने रखेंगे तब। लेकिन अगर आप एक्चुअली एक एप्पल को होल्ड करिए इसी तरीके से जैसे ये पिक्चर दिखा रहा है आपको, और एक चाकू से ऐसे काटिएगा इस तरीके से ऑब्लिकली, और अपनी आंखें मत हिलाइएगा। अब आपको अलाउड नहीं है हिलना, अलाउड नहीं है, आपके हेड का मूवमेंट अलाउड नहीं, वहीं से देखिएगा बिल्कुल, तो आपको इलिप्स नजर आएगा। इसीलिए जो है ये देखने में भी आपको इलिप्स लग रहा होगा, क्योंकि आप इस तरफ से देख रहे हैं पेज के बाहर आके, राइट। और जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा एक्स वाई प्लेन में वो भी इलिप्स बनेगा। ये मैं अभी साबित कर दूंगा कि इलिप्स ही क्यों बनेगा, सर्कल क्यों नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन है शायद आपका। फाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो मुझे सरफेस का नॉर्मल निकालना है। इसका जो नॉर्मल होगा वो आप सभी को दिख रहा होगा कि नॉर्मल इसका बिल्कुल इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, ऐसे करके मेरा नॉर्मल एन कैप, राइट। इसमें हम लिख देता हूँ एन कैप, ओके। और एन कैप निकालने के लिए मुझे ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई करना पड़ेगा। ये कौन बताएगा कि जो सरफेस है, सरफेस ये स्पेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, सरफेस है ये वाला, ये क्या है, ये इसको टच करो, हाथ से टच करो इसको, क्या चीज है ये? सर एक गौरव प्लेन कुमार, रहेगा सर। वेरी गुड, उस प्लेन की इक्वेशन बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अरे अरे प्लेन तो ये रहा। सर इस प्लेन का सर इक्वेशन थोड़ा सा अजीब हो जाएगा सर। ये क्यों हो जाएगा y जी, ये is लिख equal के तो to दे रखा है। सर y is equal y to x। इक्वल टू एक्स, तो x माइनस वाई लिखूं या y माइनस एक्स लिखूं, ये बता दो बस। सर इस तरफ जा रहे हैं तो सर वन वन पुट करके देख लेते हैं सर क्या आना चाहिए। x माइनस वाई, क्योंकि जो एरो बना रहे हैं ना रेड कलर का, जो एन कैप है ना, अगर आप उसके ऊपर चल के जाओगे तो x बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे में x बढ़ रहा है घट रहा है, सर x पॉजिटिव है x या नेगेटिव? बढ़ रहा है सर। पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो x क्या की पॉजिटिव आना चाहिए, अगर घट रहा होता तो माइनस आता, मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है या नेगेटिव जा रही है, या x माइनस वाई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ग्रेडियंट फाई कितना आएगा। ग्रेडियंट फाई विल बी आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, आई कैप माइनस जे कैप आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप निकालेंगे एन कैप, दैट विल बी ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई, राइट। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आई माइनस जे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या इतना समझ में आ गया सब बच्चों के? यस और नो प्लीज। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने प्रोजेक्शन कौन से प्लेन में, अच्छा इसका प्रोजेक्शन, ये तो सब मतलब इस बात से एग्री करेंगे कि सबसे अच्छा प्रोजेक्शन, इसका सबसे सही प्रोजेक्शन इसका ये वाले प्लेन में आएगा, नीचे वाला प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। इसका अगर आप इधर प्रोजेक्शन लेंगे तो गलत आएगा, इधर भी गलत आएगा, नहीं इधर भी ठीक आएगा वैसे, वाई जेड में भी ठीक आएगा, लेकिन एक्स जेड प्लेन में भी बिल्कुल सही प्रोजेक्शन आएगा। क्या ये बात सही है? अगर आप नॉर्मल डालेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा ऊपर। यस, तो मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, हाँ मोस्ट एक्यूरेट आएगा, राइट। लेकिन वो इलिप्स आएगा ये कैसे पता चलेगा, देखिए, टेक टेकिंग प्रोजेक्शन आर ऑन xz plane, right, which is an इलिप्स। जो प्रोजेक्शन आएगा वो इलिप्स आएगा, लेकिन ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि इलिप्स आएगा, कैसे मैं इतनी बड़ी गारंटी दे सकता हूँ कि इलिप्स हो सकता है, वो सर्कल हो, राइट। क्योंकि एप्पल को जब काटेंगे इस तरीके से, तो अगर सामने से देखोगे, व्हाइट पोर्शन के ठीक सामने आके देखोगे, झांक के देखोगे, तो वो आपको सर्कल दिखेगा। एक बाहर की तरफ से देखोगे जिस तरफ से आप अभी देख रहे हो तो इलिप्स दिखेगा। लेकिन प्रोजेक्शन क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। तो या तो आप इस एक्चुअल जो सिनेरियो है वो सचमुच में करके देख लीजिएगा घर में, एक तरीका तो वो है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ मुझे कैसे पता चला कि ये इलिप्स ही आएगा। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू प्लेन,
हाँ वैसे सर बात भी सही है, जितना है, हाँ वो भी बात सही है, हेमिस्फीयर से जितना होगा उतना ही फ्लक्स उससे भी होगा, बात सही है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आया, वाई हाउ, राइट। तो ये ऐसे आया कि आपने क्या करना है, ये जो बन रहा है, ये किस किस के इंटरसेक्शन से बन रहा है, इस बाउंड्री को देखिए, इस एस की बाउंड्री किस किस के इंटरसेक्शन से बन रही है, द सर XYZ प्लेन। नहीं, किस किस का इंटरसेक्शन हुआ जो एस की बाउंड्री बनेगी, बाउंड्री ऑफ एस इज इंटरसेक्शन ऑफ, अरे बताओ ना कैसे बना, वो व्हाइट कलर जो है एप्पल का, उसके चारों तरफ की बाउंड्री कैसे बनी, ये देखो क्या क्या बोल रहे हो, अरे एप्पल का व्हाइट कलर का पोर्शन कैसे बना, जब आपने एप्पल को चाकू से काटा ना, एप्पल की इक्वेशन यानी स्फीयर की इक्वेशन, चाकू की इक्वेशन यानी प्लेन की इक्वेशन, उनको आपस में सॉल्व करो, ठीक है, यस और नो, समझ में आया नहीं आया, वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन, जब से डायगोनली कट किया, हाँ ऑफ कोर्स डायगोनली कट किया, किसने किसको कट किया, एप्पल को कट किया चाकू ने, एप्पल इज स्फीयर, चाकू इज प्लेन, तो मैं दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, यस अब बोला आपने सही, स्फीयर को काटा प्लेन ने, y इक्वल टू एक्स, राइट, राइट, तो इसको सॉल्व करिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट, तो ये मिलेगा आपको ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए बाय रूट टू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज एन एलिप्स, ये एलिप्स की इक्वेशन है, आपको दिख रही होगी, एलिप्स ऑन एक्स जेड प्लेन, तो इसीलिए पता चला कि ये जो ब्लू कलर का जो पिक्चर है ये एलिप्स है, सर्कल नहीं होगा, ये ऐसे पता चला, एक्चुअल आपने बाउंड्री डीएस विल बी रिप्लेस्ड बाय dx dz अपॉन n कैप डॉट j कैप, राइट, तो कितना मिलेगा ये आपको, n डॉट j कितना आ रहा है, दैट विल बी dx dz अपॉन मॉडुलस ऑफ n डॉट j आएगा -1 अपॉन square root 2, so that gives you square root 2 dx dz, right, and then flux through s is given by double integration s f dot n cap ds, that is equal to डबल इंटीग्रेशन f dot n cap कर लेते हैं, कितना आएगा f dot n cap, f क्वेश्चन में दिया है, this is f I minus j, some people with unknown names have joined, sir no problem, ज्वाइन करने दीजिए, पढ़ने जो आ रहे हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है, that gives you f dot n करेंगे, that gives you 1 plus 1 upon square root of 2 dot n cap, right, so n cap, the n cap is, sorry n cap मैंने डाल दिया है, not dot, ds का वैल्यू मुझे डालना है, the ds is actually square root of 2 dx dz, right, so this is just square root of 2 dx dz, so everything should be in xz actually because you are on xz plane, तो luckily this time हो क्या रहा है कि अच्छा हुआ कि ये xz इसमें वेरिएबल आ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, रूट से रूट 2 will appear outside and double integration r dx dz, and fortunately we don't need to write the limits of x and z, जरूरत नहीं है लिमिट की, क्योंकि आप देख रहे हैं this is area of area, right, so multiplied with area bounded area in of R, area of region R, area of region R is equal to twice, and area of, please pay attention, the region R is an ellipse and area of ellipse जानते हैं आप क्या होता है, pi into semi major axis, that is a upon root 2 multiplied with
length of semi-minor axis, right? So area of region R bounded by ellipse. So that is pi a into b is the area, right? So answer मिलेगा square root of 2 pi a square. This is the answer. Any doubt? Any doubt? Pi AB. Yeah, pi AB is the area for ellipse. For the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. तो उसका एरिया होता है pi into a into b, right? तो ये